हाय फ्रेंड्स। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं संस्कृत का 9th नंबर का चैप्टर चक्षुमान अंध एव। इसका सिंपल सा अर्थ है आंखें होने के बावजूद भी जो अंधा है, આંખો હોવા છતાં પણ જે આંધળો છે. In Sanskrit literary world, Banbhata is well reputed as best prose writer. સંસ્કૃત સાહિત્યમાં બાણભટ્ટ ગદ્ય सम्राट तरीके जानीता છે. એટલે કે इन संस्कृत साहित्य में बाणभट्ट करके जो एक लेखक थे वो प्रोज राइटर यानी जो स्टोरीज लिखते हैं वैसे लेखक तरीके जाने पहचाने हुए हैं. He lived in the first half of 7th century during the rule of King हर्षवर्धन in northern India. वो 7वीं सदी में जब किंग यानी कि राजा हर्षवर्धन का उत्तर भारत में शासन था तब वे हो गए. 7મી સદીના પૂર્વાર્ધમાં સમ્રાટ હર્ષવર્ધનના સમયમાં ઉત્તર ભારતમાં તેઓ થઈ ગયા. He was born in वत्सा रेस. તેમનો જન્મ વત્સ ગોત્રમાં થયો હતો. उनका बर्थ यानी बॉर्न उनका जन्म वत्स गोत्र में हुआ था. His father's name was चित्रभानु and mother's name was राजदेवी. उनके फादर का नाम था चित्रभानु और मदर का नाम था राजदेवी. एग्जाम में ये आता नहीं है पर मे भी कभी शायद आ जाए. He has written 2 prose works named हर्षचरितम and कादम्बरी. उन्होंने 2 पद्य यानी गद्य लिखे हैं, 2 स्टोरियाँ लिखी है. उनके नाम है हर्षचरितम एंड कादम्बरी. ये आपको शायद मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं. તેમણે હર્ષચરિત અને કાદંબરી નામે ગદ્ય કાવ્યના 2 ગ્રંથો રચ્યા છે. એટલે વન ટાઈપ ઓફ સ્ટોરી જેવું જોઈએ પણ ગદ્ય કાવ્ય સ્વરૂપે હોય. The theme of Kadambari is imaginative, whereas that of हर्षचरितम is historical. जो कादम्बरी है वो उसमें ना इमेजिन करके स्टोरियाँ है और जो हर्षचरितम है उसमें हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक बातें होती है, वो उसका निरूपण किया हुआ है. કાદંબરીમાં જે કથા વસ્તુ છે એ કાલ્પનિક છે, લેખકની પોતાની કલ્પના કે જે હકીકતમાં હોય બી નહીં ક્યારેય. જ્યારે હર્ષચરિતમાં ऐतिहासिक बधी वस्तुओने एड करेली छे. In Harshcharita, some occasions of his contemporary King हर्षवर्धन's life are narrated. हर्षचरित्र में उस समय के जो राजा थे हर्षवर्धना, उनके लाइफ के भी थोड़े से प्रसंग है, थोड़े से जो ओकेशंस है उसको भी ऐड किया गया है. જ્યારે હર્ષવર્ધન રાજા હતા એમના જીવનના કેટલાક પ્રસંગોનું હર્ષચરિતમાં લેખકે નિરૂપણ કરેલું છે. In all there are 8 sections in it which are named as ઉચ્છ્વાસ. તેમાં ટોટલ 8 ભાગ પાડવામાં આવ્યા છે, 8 પ્રકરણો છે જેને ઉચ્છ્વાસ નામ આપવામાં આવ્યું છે. टोटल हर्षचरित में 8 पार्ट है, उसको उच्छ्वास नाम दिया गया है. The present expert is an edited version from the first उच्छ्वास of हरिश्चरितम. यहाँ पे जो ये स्टोरी दी है वो फर्स्ट पार्ट है, उसमें से दी गई हुई है. आ पार्ट हर्षचरितना प्रथम उच्छ्वासમાંથી લેવામાં આવ્યો છે થોડુંક એડિટિંગ કરીને. In the assembly of Pitama, grandfather Brahma, Durvasa while chanting the hymns of Samved, quarreled with another rishi for some reason and made mistake in chanting of mantras. આ સ્ટોરીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે પિતામહ બ્રહ્માની સભા હતી ત્યાં ગુરુ દુર્વાસા પોતાના સામવેદમાંથી મંત્રોનું અધ્યયન કરતા હતા, ગાન કરતા હતા. ત્યારે કોઈ બીજા ઋષિ જોડે એમનો ઝઘડો થઈ ગયો અને એ જે મંત્રનું પેલું ગાન કરતા હતા એમાં થોડીક મિસ્ટેક થઈ ગઈ. जब असेंबली में ब्रह्मा जी की असेंबली में यानी सभा में दुर्वासा मुनि सामवेद के थोड़े से मंत्र का अध्ययन कर रहे थे, गान कर रहे थे, तब उनका थोड़ा सा झगड़ा किसी और ऋषि के साथ हो गया. तो उसकी वजह से वो जो गान कर रहे थे सामवेद के मंत्र का उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई. This made सरस्वती laugh. तो ये देख के जो देवी सरस्वती है उनको
હસના આ ગયા. આ જોઈને સરસ્વતી દેવીને હસવું આવ્યું. On seeing Saraswati laughing, Durvasa was enraged. Losing his temperament in anger, he cursed Saraswati to take birth on the earth. આ જોઈને દુર્વાસા મુનિને ગુસ્સો આવી ગયો. પોતાનું ટેમ્પરેચર ગુમાવીને તેમણે સરસ્વતીજીને શ્રાપ આપ્યો કે તમે જન્મ પૃથ્વી પર લેશો હવે. उनको हंसता हुआ देख के दुर्वासा मुनि एकदम क्रोधित हो गए. वैसे भी वो क्रोधी गुरु के रूप से जाने जाते हैं. उन्होंने अपना टेम्परेचर खो दिया और उन्होंने सरस्वती देवी जी को श्राप दिया कि अब उनका जन्म पृथ्वी पर होगा. Frightened of Durvasa's anger, other rishis kept quiet, remained silent, but Brahma scolded Durvasa in harsh words, which is narrated in present lesson. दुर्वासा जी का गुस्सा देख के बाकी के जो ऋषि थे वो सब शांत हो गए, मौन हो गए, चुप हो गए. बट जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने दुर्वासा जी को बड़े कठोर शब्दों में बोला, डांटा. तो वो जो पूरा प्रसंग है वो यहाँ पे बताया गया है. एंगर मेक्स अ मैन अनेबल टू डिस्क्रिमिनेट गुड एंड बेड. ક્રોધ માણસની બુદ્ધિને સારા નરસાનો ભેદ કરવા દેતી નથી. એટલે કે जब क्रोधी मानस होता है, गुस्सा जिसमें होता है, वो मनुष्य कभी भी अच्छा बुरा सच्चा झूठा उसका ना डिफरेंस नहीं सर्च कर सकता. Hence, in spite of having eyes, he behaves like a blind. तो यहाँ पे वो बंदा क्या कहलाता है? आंखें होने के बावजूद भी जो अंधा है, जिसको दिखाई नहीं देता, आंखें खुली है, देख सकता है बट सही नहीं देख सकता. वो उसकी आंखों पे ना ગુસ્સે કા પડદા પડ ગયા હોતા है. તો તે આંખોવાળો હોવા છતાં પણ અંધ જ બની રહે છે. The reactions and results of anger are pointed out here. उसका जो गुस्से में जो रिएक्शन होता है और जो रिजल्ट आता है वो यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया हुआ है. Here are described the things which a person blind with anger cannot see in spite of having eyes. यहाँ पे वो बताया गया हुआ है कि गुस्से में मनुष्य आंखें होने के बावजूद भी सही वस्तुएं, सही चीज़ें, सही पर्सन को देख नहीं सकता है. Thus the moral to stay away from anger is beautifully given here. तो यहाँ पे हमें क्रोध से दूर रहने के लिए लेसन दिया गया हुआ है. जस्ट क्रोध से बचने का, क्रोध तो सबको आता है पर उससे बचने का यहाँ पे लेसन दिया गया हुआ है. तो फ्रेंड्स अभी उसका प्रस्तावना देख लिया, अभी उसके वर्ड मीनिंग्स हम देख लेते हैं, उसके बाद ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज हम देखेंगे. तो चलो अभी ये स्टार्ट करते हैं. पितामह यानी ब्रह्मा. According to mythology, Brahma is the creator of human world. Hence, he is called father of father. Patahah, the drum, yani nagara. Durvasa, name of a sage, well known for his anger. Arthah, object. Alokah, light. Ragah, attachment and redness. निसर्गः नेचर. विष पादपः ट्री ऑफ पॉइजन. शैलुषः एक्टर. आकल्पः ड्रेस अटायर यानी उनका वेश. आशा तो डायरेक्शन. दिशा वृत्ति ही कंडीशन बिहेवियर. प्रकृति आईब्रो. हार यष्टि नेकलेस. वैविधिकता एबिलिटी टू कैरी लोड यानी क्या बोलते हैं इसको, हम जो वेट सहन कर सकते हैं वैसा. अभी एडजेक्टिव देखते हैं. सप्तम सरस्वती, टू वन सरस्वती हु इज कर्स्ड यानी श्राप जिसको मिला है वो सरस्वती. इंद्रिया स्वस्मुत्थापितम, रजः रजः यानी डस्ट. अरोज बाय हॉर्सेस इन द फॉर्म ऑफ सेंसेस, हमारी जो इंद्रिया होती है 5 उसका यहाँ पे बोला गया है कि इंद्रिय रूपी हॉर्सेस यानी घोड़ाओं. कियद दूरम हाउ फार. विशुद्धया दिया बाय प्योर इंटेलेक्ट. परदोष दर्शन दक्षा दृष्टि ही.
एक्सपर्ट इन फाइंडिंग फॉल्ट विथ अदर्स, जो दूसरों को दोषों में उसको जो देखने में होशियार हो। कोप कलुषिता मतिः polluted by anger, intellect। अतिरोषणः जनः very angry, energed। चक्षुमान् जनः having eyes, man। वृत्तमुक्ता चित्तवृत्तिः mannerless। उपसंशून्येन चेतसा by disturbed devoid of pacification mind, यानी जस्ट उसके दिमाग में शांति नहीं है, बेचैन। परस्तात आफ्टरवर्ड्स पछीथी, इन फ्यूचर। एकत्र टुगेदर। कव वेर। अनंतरम आफ्टरवर्ड्स, पश्चात देन। चलो अभी हम कंपाउंड देख लेते हैं। मंगल पटेहन तो कर्मधारय। एग्जाम में टेक्स्ट बुक में से पूछते हैं, ऑप्शन दिए होते हैं, तो इसमें भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। साधु सेवितः तृतीया तत्पुरुष। इंद्रिया स्वसमुस्थान पितम, तो ये जो है उसको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 2-3 है। कर्मधारय भी आता है, तृतीया तत्पुरुष भी आता है। कृत बुद्धयः तो बहुव्रीहि निसर्ग विरोधिनी। षष्ठी तत्पुरुष। पयः पावकयोः, तो पयः और पावक दोनों अलग किए हुए हैं च से, तो इतरेतर द्वंद्व। धर्म क्रोधयोः, वो भी इतरेतर द्वंद्व। सर्वत पसाम कर्मधारय। परदोष दर्शन दक्षा, षष्ठी तत्पुरुष। परदोषस्य दर्शनम, षष्ठी तत्पुरुष। आत्मदोषम, षष्ठी तत्पुरुष। महातपोभर वैवधिकता, तो कर्मधारय षष्ठी तत्पुरुष दोनों आता है। कोप कलुषिता तृतीया तत्पुरुष। स्वेदश्लीलम षष्ठी तत्पुरुष। लोक विनाशाय षष्ठी तत्पुरुष। विषपादपस्य षष्ठी तत्पुरुष। जटावल्कलानि इतरेतर द्वंद्व। मुनिवेशस्य षष्ठी तत्पुरुष। हार्यष्टिः कर्मधारय। वृत्तमुक्ताः तृतीया तत्पुरुष। चित्तवृत्तिः षष्ठी तत्पुरुष। उपसंशून्येन तृतीया तत्पुरुष। तापसाकल्पम तो षष्ठी तत्पुरुष। जस्ट एग्जाम में आपको षष्ठी तृतीया चतुर्थी ऐसे डिफाइन नहीं करना होता है, ऑप्शन दिए होते हैं। षष्ठी में तत्पुरुष कर्मधारय बहुव्रीहि बस ऐसे ही होते हैं। इतर द्वंद्व है वो आपको करना पड़ता है अलग। दृष्टवा सीइंग, अपहाय लिविंग, प्रभुतः एंगेज। चलो अभी हम इसके नोट्स देख लेते हैं। चक्षुमान अंध एव ब्लाइंड इन स्पाइट ऑफ हैविंग आइज, यानी आंखें होने के बावजूद भी जो अंधी है, ब्लाइंड ही है। पुरियन फीलिंग भरना। सीरियसली उवाच। स्पोक सेड। ब्रह्मन ओ ब्राह्मीन, एन एड्रेस यूज फॉर दुर्वासा। साधु सेवितः practiced by good men। पंथाः path। निहन्ति kills। कलुषयति pollutes। अनक्षिजिताम् of those having sensitive senses eyes। धियाः by intellect। कृतबुद्धयः wise persons। असतः सतः वा अर्थान् to real or false object। पयः पावकयोः इव like water and fire। तमसि in darkness। निमज्जसि you are sinking। महातपोभार वैवधिकता ability to bear the power of severe penance, यानी महान ताप जो तप किया होता है तपस्वी ने उसको वहन करने की शक्ति। पुरोभागित्वम टेंडेंसी टू फाइंड फॉल्ट ऑफ अदर्स, दूसरों के दोष देखना। अंधकारी भविति becomes blind, gets destroyed। समास्कदन्ति encompasses affects। આક્રમણ કરવું સમાસ્કંદંતિ એટલે। ચર્મમ લાસ્ટ। તાપસાકલ્પમ costume dress of a sage, यानी वेश। आकल्प यानी वेश। कुशल जातम टू मैनी स्किल्स, अनेक अच्छी सी स्किल्स।
अभी संधि देख लेते हैं, ये भी यहाँ पे जो है चैप्टर्स में वो ही आएगी। पितामहो मंगल पठेनेव, तो पितामह प्लस मंगल पठेन प्लस इव, पीछे हे नेव आया है तो उसको ई कर देते हैं, नेव में से ई अलग हो जाता है तो इव। साधु सेवितोयम, तो साधु सेवितः प्लस अयम। येनासि, तो येन प्लस असि। निहन्त्येस परस्तात्, तो निहन्ति एस परस्तात्। चक्षुरीक्षते, चक्षुः प्लस इक्षते। सतो वा, सतः प्लस वा। चेयम, च प्लस इयम। पयः पावकयोरिव, तो पयः पावकयोः प्लस इव। धर्म क्रोध योरेकत्र, तो धर्म क्रोधयोः प्लस एकत्र। आलोकम पहाय, तो आलोकम प्लस अपहाय। दृष्टिरिव, तो दृष्टि ही प्लस इव, छोटा इव। ततो भ्रुकुटिः, तो ततः भ्रुकुटिः। तपो गलती, तपः गलती। विस्पादपस्येव, तो विस्पादपस्य प्लस इव। हार्यष्टिरिव, तो हार्यष्टिः प्लस इव। सैलुस इव, तो सैलुसः प्लस इव। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक है उसका प्रस्तावना और उसका जो ग्रामर है वो पार्ट कंप्लीट होता है। अभी हम ट्रांसलेशन और उसकी एक्सरसाइज देखते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका ट्रांसलेशन। ચક્ષુમાન અંધ એવ, આંખોહારો હોવા છતાં અંધ છે. અથ તામ તથા સપ્તામ સરસ્વતીમ દ્રષ્ટવા પિતામહો મંગલપટહેનેવ સ્વરણે આસાહ પૂરયન સુધીરમ દુર્વાસસમ ઉવાચ. Now having seen Saraswati cursed like that, Lord Brahma said to Durvasa solemnly, filling all the directions with his voice resembling the auspicious drum. હવે સરસ્વતીને તે પ્રમાણે શાપિત થયેલી જોઈને પિતામહ બ્રહ્માજીએ મંગલકારી નગારાના જેવા અવાજથી દિશાઓને ભરી દેતા ગંભીરતાપૂર્વક दुर्वासा ने કહ્યું. आगे जैसे हमने प्रस्तावना देख ली है वैसे सरस्वती जी के हंसने के कारण दुर्वासा जी ने उनको श्राप दिया है धरती पर जन्म लेने का। तो उनको सरस्वती देवी जी को ऐसे शापित हुआ देख के पितामह ब्रह्मा जी ने बहुत ही सीरियस आवाज से चारों दिशाओं को पॉइंट करते हुए मंगलकारी ड्रम जैसे आवाज से गंभीरतापूर्वक दुर्वासा को बोला, ब्रह्मन न खलु साधु सेवितोयमः पंथाः येनासि प्रवृत्तः निहत्येष परस्तात्. O Brahmin, indeed this is not the way trodden by good people on which you are proceeding. This destroys afterwards. હે બ્રાહ્મણ, ખરેખર આ સજ્જનો વડે સેવાયેલો માર્ગ નથી જેના પર તમે ચાલ્યા છો, તે પાછળથી હણી નાખે છે. તો હો બ્રાહ્મણ, ये सच में सज्जन यानी गुड पर्सन्स द्वारा सिलेक्ट या चुना हुआ रास्ता नहीं है जिस पर आप अभी चल रहे हो, वो पीछे से सबको हर्ट करता है. इंद्रिया स्वस्मुत्थापितम ही रजः कलुषयति दृष्टिम अनक्षजिताम. Because the dust raised by the horses in the form of sense organs spoils the sight of those who have not conquered their senses. ઇન્દ્રિયો રૂપી ઘોડાઓ વડે ઉડાડવામાં આવેલી રચકણ ચંચળ આંખોવાળાઓની નજરને ખરાબ કરી નાખે છે. तो जो इंद्रिय रूपी हॉर्सेस है वो जब दौड़ते हैं तो उनके पीछे जो डस्ट उड़ती है वो आँखों में चलती है और वो उसको खराब कर देती है. तो जब वो ये एक बात की है उसके अंदर का पीछे का जो बात है वो ये है कि तात्पर्य ये है कि उन्होंने गुस्सा में जो सरस्वती जी को श्राप दिया है तो वो पीछे से कितना दुख होता है, कितना दुखदायी होता है, वो बात यहाँ पे की गई हुई है. कियत दूरम वा चक्षुरीक्षते. How far indeed can physical eye see? आँख કેટલું दूर જોઈ શકે છે. जो हमारी रियल आँख है फिजिकल आई वो कितना दूर देख सकती है. विशुद्धया हि धिया पश्यन्ति कृतबुद्धयः सर्वान् अर्थान् असतः सतो वा. These who have perfected
their mind see all the real or false things with their intellect which is thoroughly purified. બુદ્ધિશાળીઓ શુદ્ધ બુદ્ધિ વડે જ બધા खोटा के साचा विषयों जोवे छे। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि जो बुद्धिशाली होते हैं वो क्रोध में गुस्से में आकर कुछ डिसीजन नहीं लेते हैं, बट वो शांति से शुद्ध बुद्धि से ही सही या गलत विषयों को देखते हैं। निसर्ग विरोधिनी चेयम पयः पावकयोरिव धर्मक्रोधयोरेकत्रः वृत्तिः आलोकम पहाय कथम तमसी निमज्जसी. This coexistence of religiousness and anger is opposed by nature like the combination of water and fire. તો ક્ષમા ही यहाँ पे जस्ट कहता है कि આ પ્રકૃતિનો વિરોધ કરનારી પાણી અને આગની જેમ ધર્મ અને ક્રોધની એક વૃત્તિ જેવી છે। ये तो बात कैसी हुई कि जैसे पानी और आग दोनों अपोजिट है, वैसे ही धर्म और क्रोध यानी गुस्सा वो दोनों अपोजिट है, वैसी बात हुई है। क्षमा ही मूलम सर्वतपसाम. Forgiveness is indeed the root of all kinds of penance. ક્ષમા એ સર્વ તપનું મૂળ છે। જ્યારે તપ કરે છે કોઈ ત્યારે એનામાં ક્ષમા તો પહેલા હોવી જોઈએ। તો ક્ષમા ही सर्व तप का रूट है, मूल है। परदोष दर्शन दक्षा दृष्टि कुपिता बुद्धि न ते आत्मदोषम पश्यति. Your intellect overpowered by anger like the inflamed eye clever in detecting the defects in others does not observe your own fault. પ્રકાશને છોડીને તમે અંધારામાં કેમ ડૂબી રહ્યા છો? ખરેખર તો ક્ષમા તપનું મૂળ છે। બીજાના દોષ જોવામાં નિપુણ દ્રષ્ટિની જેમ क्रोधी बुद्धि तुम्हारा पोताना दोष जोती नहीं। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि हम दूसरे के दोष को देखते हैं तो हमारी बुद्धि हमारे खुद के दोष को नहीं देख सकती है। क्व महातपोभार वैवधिकता क्व पुरोभागित्वम. Where the ability to bear the power of severe penance and where tendency to find faults of other. ક્યાં છે તમારા તપને ભાર વહન કરવાની શક્તિ અને ક્યાં છે અન્યના दोषને જોવાની वृत्ति। जस्ट क्या બંનેનો મેળ ખાય છે। यहाँ पे दोनों के क्या आपके तप की शक्ति और ये कहाँ पे अन्य के दोष को देखने वाली वृत्ति। अतिरोषणः चक्षुमान अंध एव जनः. ये जो बोला है कि भाई क्रोध में आया हुआ मनुष्य आंखें होने के बावजूद भी अंधा ही होता है। नहीं कोपकलुषिता विमृशति मति ही कर्तव्यम वा। चलो अभी आगे हम देखते हैं। Indeed, the intellect polluted by anger does not consider what is right to be done or what should not be done. क्रोध में जो बुद्धि खराब हो जाती है तो वो करने लायक क्या है और नहीं करने लायक क्या है वैसे का कुछ सोचती नहीं है। तो क्रोधથી ખરાબ થયેલી બુદ્ધિ કરવા યોગ અથવા ન કરવા યોગ કાર્યનો વિચાર કરતી નથી। कुपितस्य प्रथमम् अंधकारी भवति विद्या ततो भ्रुकुटिः. First, the wisdom of the angry person becomes clouded, then the eyebrow becomes dark. ગુસ્સે થયેલાની પ્રથમ વિદ્યા નાશ પામે છે, પછી તેની ભ્રમરમાં ફેર પડે છે। जो पर्सन गुस्से हो जाता है जल्दी, पहले उसकी विद्या खत्म हो जाती है एंड देन उसकी आईब्रो में चेंज होता है। आदौ इंद्रियाणि रागः समास्कंदन्ति चर्मं चक्षुः. The anger attacks the sense organs first and finally the eyes. शुरुआत में ये जो गुस्से वाली शक्ति है वो इंद्रियों पर अटैक करती है, उसके बाद आइस पर। आरंभे तपो गलती पश्चात स्वेदस लीलम. First penitence is dissolved, then the perspiration starts. शुरुआत में तप થાય છે, तप गड़े છે। पहले उन्होंने जो स्टार्टिंग में उन्होंने जो तप किया होता है वो घटना शुरू हो जाता है एंड देन पसीना होता है।
पूर्वम् अयसः स्फूर्ति अनन्तरम् अधरः. First the evil reputation and then the lower lip trembles. पहला अपयश થાય છે પછી નીચેનો હોઠ ફરકે છે यानी कि पहले उनकी जो ख्याति होती है प्रसिद्धि होती है वो डाउन होने लगती है और उनका निचला लिप है वो हिलता है. तो यहाँ पे ये बोला गया है कि हम क्रोध से हमारे शरीर में क्या बदलाव आता है ये इसका है. कथम लोक विनाशाय ते विस्पादपस्ये जटावर्कलानि जातानि. How have your mattered How have your met hair and bark garments become the cause of the destruction of people like the roots and barks of a poisonous tree? લોકોના વિનાશ માટે તમારી જટા અને વર્ક વસ્ત્રો ઝેરના ઝાડ જેવા કેમ થઈ ગયા છે. यहाँ पे बोलते हैं ब्रह्मा जी दुर्वासा को कि विनाश के लिए आपकी जटा और वल्कल वस्त्र जो आपकी जटा है यानी साधु का तो मोस्टली जटा और उनके वस्त्र होते हैं वो पॉइजन ट्री जैसे क्यों हो गए हैं. अनुचिता खलु अस्य मुनिवेशस्य हार्यष्टिरिव वृत्तमुक्तः चित्तवृत्तिः. This tendency of your mind devoid of good conduct is as improper for this grave of an ascetic as the necklace. ખરેખર આ મુનિવેશની हारमाळा જેવી सदाचार रहित मनोवृत्ति योग्य है. जस्ट वो पूछ रहे हैं कि ऐसी मनोवृत्ति योग्य है जो मनुष्य के लिए अच्छी नहीं है. शैलुस इव वृथा वहसी कृत्रिमम उपसम सुनियन चेतसा तापसा कल्पम. With your mind without peace, you are wearing the counterfeit costume of an ascetic like the actor. तो तमें आ एक्टर यानी जैसे यहाँ पे बोलते हैं कि एज अ एक्टर जो एक्टिंग करता है उसकी तरह आप क्यों ऐसे कृत्रिम जिसमें शांति नहीं है गुस्सा है वैसे तपस्वी का वेश क्यों वहन किया है क्यों आपने धारण किया है. તો નટની જેમ તમે વ્યર્થ કૃત્રિમ અશાંતિવાળા મનથી તપસ્વીના વેશને સહન કેમ કરો છો વહન કેમ કરો છો. અલ્પમપી નતે પશ્યામિ કુશલ જાતમ. I don't see even the slightest happiness likely to proceed from you to others. હું તમારામાં શાણપણનો જરા પણ અંશ જોતો નથી. હું તમારામાં मैं आप में ऐसा कोई अच्छे गुरु जैसा एक अंश भी नहीं देख सकता ऐसा नहीं देख रहा. वो जो दुर्वासा मुनि को ब्रह्मा जी कहते हैं. हर्षचरिते प्रथम उच्छ्वासे फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हर्षचरितम हर्षचरित्रना प्रथम प्रकरण. तो यहाँ पे ये ट्रांसलेशन खत्म होता है. अभी हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं. तो चलो अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट अर्धोलिखितेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चिनुत. इंद्रिया स्वसमुत्थापितः रजः किं कलुषयति. ऑप्शन से क मनः ख मस्तकम ग दृष्टिम क सत्यम. सही जवाब है ग दृष्टिम. सेकंड कुपिता बुद्धि किं न पश्यति. ऑप्शन से क मार्गम ख परदोषम ग आलोकम ख आत्मदोषम. तो सही जवाब है ख आत्मदोषम. थर्ड कुपितस्य स्वदेश लीलात् पूर्वम किं गलती. ऑप्शन से क तपः ख कर्तव्यम ग रागः ख अधरः. तो सही जवाब है क तपः. 4 कुपितस्य पूर्वम अयशः ब्लैंक अनंतरम अधरः. ऑप्शन से क विमृश्मति ख स्फूर्ति ग कलुषयति ख निमज्जति. तो सही जवाब है ख स्फूर्ति. 5 शैलुष शब्दस्य कः अर्थः. ऑप्शन से क डांसर ख एक्टर ग सिंगर ख माउंटेन. तो सही जवाब है ख एक्टर. 6 वृत्तमुक्ताः चित्तवृत्तिः कीदृशी इव. तो क हार्यष्टि ख विस्वल्ली ग दुष्टबुद्धिः ख अविद्या. तो सही जवाब है क हार्यष्टि. सेकंड एक वाक्य संस्कृत भाषाया उत्तरतः. फर्स्ट कृतबुद्धयः कथं पश्यन्ति. आंसर कृतबुद्धयः विशुद्धया धिया असतः सतो वा सर्वान् अर्थान् पश्यन्ति. सेकंड धर्मक्रोधियोः एकत्र वृत्तिः कीदृशी. तो धर्मक्रोधियोः एकत्र वृत्तिः पयपाक्कयोरीय निसर्गविरोधिनी अस्ति. थर्ड
कोप कलुषिता मतिः किं न विमृश्मति। कोप कलुषिता मतिः कार्यम् अकार्यं वा न विमृशति। 4. मुनिवेशस्य का अनुचिता। मुनिवेशस्य हार्यष्टिः इव वृत्तमुक्ताः चित्तवृत्तिः खलु अनुचिता। 5. क्रोधान्धस्य किम् अंधकारी भवति। आंसर है क्रोधान्धस्य विद्या अंधकारी भवति। 6. 6. दुर्वासाः कीदृशेन चेतसा तापसा कल्पं वहति। दुर्वासाः शैलूषः इव वृथा वहति कृत्रिमम् उपशमशून्येन चेतसा तापसा कल्पम्। समास देखते हैं, ये टेक्स्ट बुक में दिए गए हुए ही है, वहाँ से ही पूछते हैं। फर्स्ट मंगल पठेन तो कर्मधारय। सेकंड साधु सेवितः कर तत्पुरुष। कृत बुद्धयः बहुव्रीहि। 4. कोप कलुषिता तत्पुरुष। 5. धर्म क्रोधयोः इतरेतर द्वंद्व। 6. विस्पादपस्य तत्पुरुष। संधि ये भी टेक्स्ट बुक की है। साधु सेवितो यम तो साधु सेवितः प्लस अयम। चक्षु रिक्सते तो चक्षुः प्लस इक्सते। ततो भ्रुकुटिः तो ततः प्लस भ्रुकुटिः। अन्धेव तो अन्धः प्लस एव। अभी 4 रेखांकित पदानां स्थाने प्रकोष्ठात् उचितं पदं चित्वा प्रश्नवाक्यं रचयति। यानी हमें सेंटेंस दिया है, उसका क्वेश्चन बनाना है, जो हमें ब्रैकेट में दिए हैं उन शब्दों से। फर्स्ट पितामह सुधीरम उवाच तो कह सुधीरम उवाच कौन कौन बोलिया, कौन कह એટલે कौन। सेकंड आरंभे तपो गलती तो कदा यानी क्यारे। कदा तपो गलती पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर से लगाना है, और जहाँ पे अंडरलाइन किया है वहीं पे क्वेश्चन शब्द आएगा। थर्ड कुपितस्य मतिः कर्तव्यम कर्तव्यम न विमृशति तो कस्य मतिः कर्तव्यम कर्तव्यम न विमृशति। फोर्थ कुपिता बुद्धिः आत्मदोषं न पश्यति कीदृशी बुद्धिः आत्मदोषं न पश्यति। अलंग भाषायाम उत्तरम लिखत यानी आपकी मदर टंग में। फर्स्ट whom did Durvasa curse why? In the assembly of Pitama Brahma, the hymns of Samveda were being sung by Durvasa and others. While chatting, the Durvasa quarrelled with another rishi for some reason and made mistake in chanting. Goddess Saraswati could not help laughing. This made the sage Durvasa angry and he cursed Saraswati. What is religion and anger together compares to? Religion and anger are like water and fire. They can never exist together. By nature, these two are opposites. Water extinguishes fire. Similarly, anger destroys religion. When a man gets angry, he causes to be a religious person. Third, why did Brahma compare Durvasa with an actor? An actor, even when disturbed in mind, does the role of an ascetic. In the same way, Durvasa, wearing the dress of a sage, should be calm and quiet. He should be well behaved, but getting angry, he presented himself like an actor wearing the dress of an ascetic. So Brahma compared him with an actor, that to a bad actor. Fourth, with does author compare Durvasa's costume and mat hair with why? Durvasa's mat hair and bark garments are not able to create the atmosphere of piety and peace. They have become a poisonous tree that destroys the people nearby. His angry behavior is as out of place as a necklace worn by a sage. The actor dressed as an ascetic has no restraint over his senses, nor had Durvasa. So his mat hair and dress are compared with the roots and bark of a poisonous tree. Fifth, what does Brahma say regarding forbearance? Pitama Brahma says to Durvasa, forbearance is the very root of all patience. When the intelligence is overpowered by anger, it notices the faults in others but turns blind towards one's own
shortcomings, and mistakes. The angry man is, in a sense, a blind man who cannot discriminate between what is proper and what is improper. There is a world of differences between the ability to bear the power of severe penance and tendency to find faults of theirs. He urged Darvasa to forgive Saraswati. Saraswati. Short note A. First, physical effect of wrath. In the present extract from Branbhata's Harshcharitam, the visible symptoms or the physical changes brought about by anger have been described in detail. Anger spoils the intellect and makes it unable to discriminate between what should be done and what should not be done. At first, the learning or knowledge of an angry person is rendered ineffective. The attachment affects the sense organs. His brow becomes dark and eyes become red. First, the penance gets dropped, then the drops of perspiration. First, the reputation trembles, and then the lips. Brahma's rebuke to Durvasa. The sage Durvasa made a mistake in chanting the hymns of Samveda, which made goddess Saraswati laugh. The sage felt insulted and cursed her. Lord Brahma criticized the sage sharply for losing the temper. He pointed out that the forgiveness is the very root or base of all kinds of penance. Anger makes one expert in detecting the faults of others and blind towards one's own faults. The man overpowered by anger is actually blind in spite of having eyes. He also pointed out that anger and religiousness cannot coexist. The bark garments and mat hair are meaningless if his mind is disturbed. Finally, he urged Durvasa to forgive Saraswati and make amends. अभी टेक्स्ट बुक में मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर है. फर्स्ट है आरंभे तपो गलती, तो पश्चात्स्वेदस लीलम. सेकंड आदौ इंद्रियाणि रागः समास्कंदन्ति चरमं चक्षुः, टेक्स्ट बुक के ही है. थर्ड प्रथमम अंधकारी भवति विद्या ततो भ्रुकुटिः. फोर्थ पूर्वम अयसः स्फूर्ति अनंतरम अधरः. अभी एक्स्ट्रा में टेक्स्ट ये डाइजेस्ट के समानार्थी है, वो यहाँ पे हम ले लेते हैं. पंथाः तो कामुकः, पथिकः अध्वन, तो पंथाः तो अध्वन. चक्षुः अचक्षु इक्षणं कर्णः, तो इक्षणं. पटः तो दुन्दुभिः पटलं पटीरः, दुन्दुभिः. इन्द्रियं त्वकरणं चक्षुः, तो करणं. अश्वः रथ्यः घोटकः वाहकः, तो घोटकः. गिः तो मतिः धृतं रजः, गिः तो मतिः. पावकः अनिलः पावनः अनलः, तो अनलः. आलोकः तो आरोह प्रकाशः घोटकः, आलोकः तो प्रकाशः. पयः तो उदकं दक्षः दधिं, तो पयः यानी उदकम्. आदि अंतः पूर्वं पश्चात, तो पूर्वम. आदि यानी समानार्थी पूर्वम. आशा दिशः प्रतीचिः उदोचि, तो दिशः. दृष्ट्वा आनीय वीक्ष्य विचिन्त्य, तो दृष्ट्वा यानी वीक्ष्य. द्वितीय विभक्ति एक वचन, उसमें पीछे म आता है, तो आशया आसाम आशायाम, तो यानी डॉट भी आए, और जो ये लाइन वाला है खोड़ा नहीं होता है, पूरा म होता है, तो आशाम. क्षमायाः क्षमां क्षमयोः, तो क्षमाम. विद्यायाः विद्याभ्याम विद्याम, तो विद्याम. विरोधी शब्द देख लेते हैं. चक्षुमान तेजः अंधः त्र्यंबकम, तो अंधः. विशुद्धा मलिना गोत्रा निर्मला, तो मलिना. आलोकः प्रभा तमसः शुभा, तो तमसः. असतः सत सतां विगतः, तो सतः. दक्षः तो नभः अदक्षः तपस्विनः, अदक्षः. कलुषिता विमला अशुद्धा सरलतया, तो कलुषिता तो विमला. आदि पूर्वे पश्चात अनंतरा, तो पश्चात. आदि तो पश्चात. पयः वाहनः पावकः कृशानो, पावकः.
कर्तव्यम तो अकर्तव्यम, कार्यम वत्सल तो अकर्तव्यम। अभी वर्तमान कालस्य मध्यम पुरुष एक वचन, जो हमें पहले सिखाए गए थे, मी वह मह सी थह तह ती तह अंति और ये वहे महे से इथे द्वे ते इते अंते, ये वहाँ से आते हैं। तो हंसी हथह हंती तो हंसी, इक्सते इक्सथे इक्ससे तो इक्ससे, वह तह वहाम वहसी तो वहसी, ब्रुसे ब्रुवाथे ब्रुत्वे तो ब्रुसे। पितृत्या विभक्ते एक वचन, आशया आशाः आशाये तो आशया, वृत्तया वृत्तिभ्यां वृत्तये तो वृत्तया, बुद्धि बुद्धया बुद्धिभ्यः तो बुद्धिया। अभी ये टेक्स्ट बुक के नहीं है, ग्रामर डाइजेस्ट में दिए गए हुए हैं। एग्ज़ाम में ये पूछाते हैं इस टाइप के। इसमें क्या होता है कि सेंटेंस जैसे वैसे ही लिखने हैं, पर सेंटेंस जो पैराग्राफ छोटा सा दिया होता है उसमें 2-3 शब्द के नीचे अंडरलाइन होती है, तो वहाँ पे हमें सिर्फ चेंज ही करना है, पूरा चेंज नहीं करना है ग्रामेटिकल। बट मंगल है तो उस पर देखो ये से ड आ जाता है, फिर दुर्वासम में हम बोलते हैं तो दुर्वाससम, तो म उसको लिखना होता है ऊपर, डॉट नहीं। पंथा में तो पंथ हमारा जैसा प्रोनाउंस होता है वैसे हमें वर्ड रखना है बीच में। टेक्स्ट बुक का ही है तो एक बार तो मैं कहती हूँ कि आपको लेसन पूरे ध्यान से पढ़ना तो पड़ेगा ही। अथ ताम तथा सप्तां सरस्वतीं दृष्ट्वा पितामहो मङ्गलपठनेन स्वरेण आसाः पुरीयन् सुधीरं दुर्वाससम् उवाच, ब्रह्म न खलु साधु सेवितोऽयं पंथाः येनासि प्रवृत्तः। तो इसमें देखो मंगल पठने, दुर्वाससम, पंथा तीनों में अंडरलाइन है, तो ये तीनों के कैसे चेंज होते हैं। तो अथताम तथा सप्ताम सरस्वतीम दृष्ट्वा पितामहो, मंगल है तो मंगल में जहाँ पे भी डॉट आता है अंडरलाइन वाले वर्ड्स पे वहाँ पे चेंज होता है, तो ऐसे करते हैं ड करके मंगल पठने, स्वर्ण आशा पुरयन सुधीरम, सुधीरम में नहीं है तो उसमें कोई चेंज नहीं करा है। दुर्वाससम हम जैसे बोलते हैं वैसे प्रोनाउंस, दुर्वाससम म हमें लिखना है। उवाच, ब्रह्मन न खलु साधु सेवितोयम पंथा, तो प न हम बोलते हैं तो बीच में न, पंथा येनासि प्रवृत्तः। आरंभे तपो गलती पश्चात स्वेद सलिलम, पूर्व अयश स्फूर्ति अनंतरम अधर। तो आरंभे तो म बोले तो हमारे प्रोनाउंस में म आता है, तो आरंभे तपो गलती पश्चात स्वेद सलिलम, पूर्वम तो पूर्वम बोले तो पूर्वम म आएगा, अयश स्फूर्ति अनंतरम, तो देखो दोनों में है, तो यहाँ पे अंडरलाइन है तो अनंतरम तो न आता है और पीछे म प्रोनाउंस होता है, तो ये यहाँ पे दोनों रखे हैं। चलो ये तो बहुत ही ईजी है। आशा रखती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।